अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। इट मीन्स आई हैव टू स्टिक टू जस्ट वन विंडो, राइट? Okay, anyways. So, individual late express trait, lowly heritable traits, and the individual selection is your not usually, it is important with respect to objective question that individual selection is usually not recommended for heritability less than 0.25. Now, aid to individual selection means alternative basis of selection, means help to individual selection, means what are the different basis of selection by which we can increase the accuracy of individual selection, by which we can achieve that selection early in life. What are the other? They are called as aid to individual selection. So in fact, all the other basis, when we select, say suppose we are taking individual selection, we feel कि repeatable अगर ये trait है, मान लीजिए जैसे मिल्क प्रोडक्शन है, एक बार नहीं बहुत बार रिपीटेड होगा, तो हम एक सिलेक्शन, तो इंडिविजुअल सिलेक्शन मींस आई विल बी टेकिंग इट फॉर अ लैक्टेशन, आई वेटेड फॉर इट वन लैक्टेशन, आई टुक द मिल्क यील्ड और हमने बोला चलो ये अब इंडिविजुअल बेटर या बैड है, उस हिसाब से हमने सिलेक्शन या कलिंग की. If suppose I preferably wait for two or more lactations, it means I am waiting for more records, and it is possible in case of repeatable traits only. So such type of selection whereby we try to increase the accuracy of individual selection by taking more number of records for repeated traits, it is called as aid to individual selection. But children, the thing is that when individual selection, we talk about the aid to individual selection, can you tell me what will be an important demerit of this aid to individual selection? हाँ बेटा, क्लास ले, हाँ. हाँ, कंग्रेचुलेशन डॉक्टर निकिता, आई एम सॉरी, क्लास ले रहे हैं बेटा, फिर हम आपको कॉल करते हैं, ठीक है? बट लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन. ओके, 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 ओके. सो व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल सिलेक्शन, हाँ क्या बोला बेटा? कंस्ट्रेंट वेरी गुड, द टाइम रिक्वायर्ड विल इंक्रीज. दूसरा चीज, सपोज वी वेट फॉर 3 लैक्टेशंस, इट विल ऑटोमेटिकली बी अवेलेबल लेस फॉर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग टाइम उसका रिड्यूस हो जाएगा. सो दीज आर एन इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स. सो when it can be used when you feel that repeatability of the trait is low, ध्यान से सुनिए, and going for single record might not be very beneficial in selection. Suppose it, मान लीजिए एक मिल्क यील्ड में अच्छा आ रहा, दो में आ रहा, अचानक इसका मिल्क यील्ड फॉल कर जाता है, it means the repeatability of trait milk yield is not good. In that case you have to wait not on one record but on more than one record. So this is the requirement of aid to individual selection, and the constraint you all know that it will lead to increased time generation interval, and secondly it will also lead to lesser breeding time of that animal, available breeding type of animal. Now, individual selection based on repeated records applicable for repeatable traits, and average based on repeated record is a better measure of breeding value, as the temporary environmental effect tend to cancel each other in average, thus increasing the accuracy. मतलब nutshell में accuracy increase होता है. accuracy इसलिए increase होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए एक लैक्टेशन में ऐसा हुआ कि बिकॉज इट वाज एन एंटीबायोटिक्स और द एनिमल वाज डिजीज्ड, हमने उसको कल कर दिया बट वो अच्छा प्रोड्यूसर रहा. अगर हम दो या तीन और दो लैक्टेशन लेते तो मे बी दैट टेम्पररी एनवायरमेंटल इफेक्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा वीईटी एंड वीईपी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वीई, याद है? हेरिटेबिलिटी में पढ़ा होगा एंड रिपीटेबिलिटी में, है ना? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिपीटेबिलिटी? वी वीजी प्लस वीईटी अपॉन वीपी, है ना? दिस इज रिपीटेबिलिटी. सो इफ यू इंक्रीज वीईटी ऑटोमेटिकली your repeatability will increase and hence the accuracy of the trait will increase. और इसको अगर लॉजिकली समझे तो ये ऐसे होगा कि टेम्पररी एनवायरमेंटल इफेक्ट मतलब क्या होता है कि किसी फीडिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, बीइंग डिजीज्ड, एनी एनवायरमेंटल हार्डशिप, न्यूट्रिशनल, अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर टाइम में जो भोजन मिला वो सही नहीं रहा, ये दीज कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूट टेम्पररी एनवायरनमेंट. सो अगर ये टेम्पररी एनवायरमेंटल इफेक्ट मान लीजिए हम लोग कम कर पाते हैं, जो कि तभी होगा जब हम लोग एक से ज्यादा रिकॉर्ड लेते हैं, एंड दिस इज द प्रिंसिपल फॉर इंक्रीज्ड एक्यूरेसी बेस्ड ऑन रिपीटेड रिकॉर्ड्स. This is the formula as shown to you all. RAP on n record is equal to square root of HN
1 plus upon h into n upon 1 plus n minus 1 r, where h is the square root of heritability of trait, r is the repeatability of the trait, n is the average number of record per animals. So for any value of repeatability r less than 0 and for any repeated number of records n greater than 1, the value of square root of this number n1 plus n minus 1 r exceeds unity. So the accuracy of repeated records is always greater than the accuracy of the one record. ठीक है, clear to all of you? क्योंकि डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमरेटर से हमेशा क्या होगा, इट विल बी स्मॉलर. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी भी वैल्यू के लिए फॉर दिस डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलर देन द न्यूमरेटर. n minus 1 1 plus n minus 1 into r, एनी वैल्यू ऑफ रिपीटेबिलिटी r लेस देन 0. दिस इतना समझने का आप लोगों को इस स्टेज पे जरूरत नहीं है, बट ये फॉर्मूला है कि एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन बेस्ड ऑन वन रिकॉर्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल सिलेक्शन h होता है. ध्यान से सुनिए, accuracy of selection in individual selection based on n record ये होता है square root of h n upon 1 plus n minus 1 r, सारा square root के अंदर में है. तो obviously for r less than 0 this denominator becomes smaller than numerator, इसीलिए RAP जो है वो बढ़ जाता है. That is the principle. Am I clear to all of you? Need not understand that much, इस वाले logic को समझिए. Because for repeated record the temporary environmental effects are nullified, so accuracy of selection increases. ये ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है. Now usefulness and constraint of individual selection we have already read. Now coming to the pedigree selection. Pedigree or the genealogical record of ancestry of an animal is called as pedigree selection. Selection of an animal based on performance of its ancestor, parent, grandparent or remote ancestor is referred to as पेडिग्री सिलेक्शन. पेडिग्री मतलब होता है एंसेस्ट्री. आप लोगों ने ये चीज 11th-12th में भी पढ़ा होगा, उसमें हम लोगों को पेडिग्री निकालना रहता था. वो मेंडेलियन वाले में एनसीईआरटी की बुक में एक फोटो दिया रहता था. आप लोग में भी है कि चेंज हुआ पता नहीं, उस समय में यही था. इंडिविजुअल रिसीव्स 50% ईच ऑफ इट्स जीन. प्रिंसिपल क्या है इसका पेडिग्री सिलेक्शन, कि भाई क्यों हम लोग पेडिग्री सिलेक्शन पे विश्वास करते हैं सिलेक्शन मेथड में? बिकॉज इंडिविजुअल रिसीव्स 50% ऑफ इट्स जीन फ्रॉम ईच पेरेंट, सायर एंड डैम. 25% of gene from each of the grandparent. जैसे जैसे ऊपर एंसेस्ट्री होते गया जीन कंट्रीब्यूशन टू द इंडिविजुअल वो घटते जाएगा. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है, जेनेटिक डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन दूर का होता जाता है. एंड 12.5% ऑफ इट्स जीन फ्रॉम ईच ऑफ द ग्रेट ग्रैंड पेरेंट एंड रिमेनिंग 7/8. 12.5 मतलब 1/2 का क्यूब मतलब 1/8, मतलब बचा हुआ 7/8 कहाँ से आता है? बाकी जो एंसेस्टर्स हैं उनसे. सो अगर इतना सब्सटैंशियल हम लोगों को पेडिग्री से पता चल जा रहा है, तो अगर हम सिलेक्शन सायर डैम के बेसिस पे कर रहे हैं तो सबसे एक्यूरेट. ध्यान से देखिए, ग्रैंड पेरेंट के बेसिस पे कर रहे हैं तो ठीक है एक्यूरेट, ग्रेट ग्रैंड के पेरेंट के बेसिस कर रहे हैं तो लेस एक्यूरेट, बट मोर एक्यूरेट देन अदर रिलेटिव्स, क्योंकि उससे सिर्फ 7/8 आ रहा है और बाकी या तो पेरेंट से आ रहा है, या तो ग्रैंड पेरेंट से आ रहा है, या तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट से आ रहा है. इन सिंगल रिकॉर्ड एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन बेस्ड ऑन वन पेरेंट इज इसीलिए 0.5h. एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन बेस्ड ऑन बोथ द पेरेंट इज 0.7h. नाउ लेट मी सी, आई हैव ट्राइड टू टेक द, पता नहीं कहाँ गया. चलिए फिर विंडो चेंज करेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा. इसको आप लोगों को हम दिखाएंगे. I will show to you all the table. Other than that, this is sufficient. ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए sufficient है कि accuracy of selection एक पेरेंट के बेसिस पे कितना होता है, and accuracy selection based on both the parent is 0.7h. Other than that, you knew कि why we go for parent भी पेडिग्री में ही आते हैं, ग्रैंड पेरेंट भी पेडिग्री में आते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट भी पेडिग्री एंसेस्ट्री में ही आते हैं. And out of them now you can see कि the most accurate pedigree selection will be when we select on the basis of parent. Obviously अगर एक पेरेंट के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक्यूरेट होगा. दोनों पेरेंट का अगर डेटा मिल जाता है तो इट इज मोर एक्यूरेट. इसीलिए accuracy of selection based on one parent is 0.5h, based on both the parent is 0.7h. Now coming to the next advantage of pedigree selection is it has shortest generation interval, applicable for sex limited trait and late expressed trait. ये दोनों हमारा constraint था
ये तीनों कंस्ट्रेंट था हमारा इंडिविजुअल सिलेक्शन में, जो कि पेडिग्री सिलेक्शन से दूर हो जाता है. जब इन द लास्ट क्लास आई वाज टीचिंग टू यू ऑल अबाउट द जनरेशन इंटरवल, उसमें हम आप लोगों को ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछे थे कि जनरेशन इंटरवल इज लोएस्ट और मिनिमम इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ सिलेक्शन, बताइए. एक्सीलेंट, क्योंकि उसमें तो वेट ही नहीं करना है. एक्सीलेंट, पेडिग्री सिलेक्शन. एंड जनरेशन इंटरवल इज मैक्सिमम इन केस ऑफ इट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ प्रोजेनी सिलेक्शन. ठीक है. समटाइम्स इट डज डिपेंड, बट जैसे कोई ट्रेट अगर हम लोग रिपीटेड रिकॉर्ड ले रहे हैं तो इंडिविजुअल और प्रोजेनी में दोनों में इक्विवेलेंट हो सकता है. बट अदर देन दैट मोस्टली इंडिविजुअल प्रोजेनी सिलेक्शन हैज हाईएस्ट जनरेशन इंटरवल, क्योंकि इंडिविजुअल में हम लोग इंडिविजुअल का डेटा के लिए वेट किए, प्रोजेनी में हम लोग प्रोजेनी का डेटा के लिए वेट किए. तो इन दैट केस वी विल वेट फॉर द प्रोजेनी इट टू बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोजेनी जनरेशन. नाउ यूज ऑफ यूजफुल फॉर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन. मान लीजिए ऐसा होता है कि वी हैव द डेटा ऑफ बोथ पेडिग्री एंड प्रोजेनी एंड वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स टू बी सिलेक्टेड. हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, पहले पेडिग्री के बेसिस पे पहले सॉर्ट आउट कर लिए कि सबसे पहले तो भाई आउट ऑफ बेस्ट पेडिग्री वाले ही एनिमल्स को सॉर्ट आउट करके 100 से 50 कर लेते हैं. अब उसमें से जो बेस्ट है वो इंडिविजुअल या अदर मीन्स ऑफ सिलेक्शन के बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे. सो प्रिलिमिनरी सिलेक्शन obviously cost effective as we do not have to wait for larger time. Now constraint is it is low, it has low accuracy because you know that most accurate is individual selection. और अगर ये लो एक्यूरेसी, एक तो पहला चीज ये, दूसरा ये एक का डेटा मिल रहा है तो चलो ठीक है, दोनों का डेटा मिल रहा है फैमिली पेरेंट का तो 0.7H. अगर मान लीजिए दोनों में से किसी एक का भी डेटा नहीं मिल रहा तो 0.5H. अगर पेरेंट का डेटा नहीं है, सिर्फ ग्रैंड पेरेंट का डेटा है, तो दैट फर्दर डिक्रीजेस. ग्रेट ग्रैंड पेरेंट का डेटा है तो वो एक्यूरेसी फर्दर डिक्रीजेस. तो ध्यान से बोलिए सोचकर कि इंडिविजुअल सिलेक्शन में सिंगल रिकॉर्ड के बेसिस पे एक्यूरेसी अगर हम बोलते हैं स्मॉल h है, ठीक है, एक्यूरेसी RAP. It is a correlation between the breeding value and phenotype or phenotypic mean of that particular individual, and it is given by mathematically it is given by square root of heritability. ये इसका वैल्यू निकल जाता है इससे. So if I say that H is the accuracy of selection based on individual record, that is individual selection, 0.5H is the accuracy of selection in one parent method, and 0.7H is the accuracy of selection both the parent in pedigree selection, and in rest of the ancestors it is obviously the value is more, उसके साथ और constant जो होगा वो point में attached होगा, जो कि which will be less than the, हमेशा ये पेरेंट और वन सिंगल पेरेंट या डबल पेरेंट से लेस होगा. मैंने बोला कि ये एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन फॉर वन पेरेंट या बोथ पेरेंट से, बाकी जो है ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट में एक्यूरेसी कम होगा. तो कंपेयरिंग जस्ट बाकी मैंने इसमें से हम लोग कह सकते हैं कि अगर पेडिग्री सिलेक्शन भी लेते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए, तो पेडिग्री सिलेक्शन will have highest accuracy when we have the data of both the parent, या फिर when we are able to combine the data of the parent with grandparent and great grandparent, more the data more will be accuracy. So basically 0.5H is the maximum accuracy we can obtain in pedigree selection. Now tell me, if I say that in individual selection maximum accuracy obtained in H and in pedigree it is 0.5H, which is more accurate? वेरी गुड, क्योंकि वैल्यू क्या है, मैथमेटिकली भी वैल्यू इंडिविजुअल के केस में क्या है, ज्यादा है एक्यूरेसी की. ठीक है. नाउ द एडवांटेज इज शॉर्टेस्ट जनरेशन इंटरवल एप्लीकेबल फॉर कंस्ट्रेंट इज एप्लीकेबल फॉर सेक्स लिंक ट्रेट, एंड ये बता दिया था. कंस्ट्रेंट्स में लैक ऑफ रिलायबल रिकॉर्ड, वी मे नॉट बी हैविंग द पेडिग्रीड रिकॉर्ड. हर एनिमल बाहर से खरीद के लाते हैं अक्सर हम लोग, तो हाउ डू वी गेट द होल पेडिग्री ऑफ द एनिमल. Then genotype environment interaction is an important factor. इसका मतलब होता है कि हर जीनोटाइप, हर एक ही जीनोटाइप अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग तरह का एक्सप्रेशन शो कर सकता है. द एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल जीनोटाइप इन डिफरेंट एनवायरनमेंट माइट डिफर. कहने का मतलब अ गुड ब्रीड माइट नॉट बी इक्वली गुड इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. दिस इज द रीजन व्हाई ऑल द ब्रीड्स ऑफ एक्सोटिक डू नॉट अडैप्ट इक्वली इन द इंडियन कंडीशन एंड वाइस वर्सा. So this is the meaning of genotype environment interaction. So ऐसा भी हो सकता है कि जिस पेरेंट के बेसिस पे हम लोगों ने प्रोजेनी को पेरेंट को सिलेक्ट कर लिया, अब वो दूसरे एनवायरनमेंट में जा करके दूसरा एक्सप्रेशन दे रहा है. पहला. देन एरर इन पेडिग्री.
इट इज नॉट नेसेसरी. देन एक और चीज है दूसरा, यू नो दैट इफ नॉन एडिटिव जीन एक्शन इज मोर, it is not necessary that a good parent will stamp or prepotency will be more, it will be less. So if non-additive gene action is more, progeny might not be very much similar to parent. तो ये क्या हो गया, हमने बोला कि पेडिग्री सिलेक्शन की बेटा जब बात करते हैं तो नॉन एडिटिव जीन एक्शन और एडिटिव जीन एक्शन, यू नो दैट प्रीपोटेंसी इज मोर इन केस ऑफ एडिटिव जीन एक्शन. You have also been taught that progeny will be very much similar to parent in case of additive gene action. लेकिन अगर नॉन एडिटिव जीन एक्शन ज्यादा है तो बेस्ट माइट नॉट प्रोड्यूस बेस्ट एंड वर्स्ट माइट नॉट प्रोड्यूस वर्स्ट. तो हमने जो सिलेक्ट किया है पेडिग्री के बेसिस पे, इट विल बिकम आइदर एक्यूरेट और टोटल फेलियर. अच्छे को सिलेक्ट कर लिया, प्रोजेनी खराब हो गया, एंड बुरे को कल कर दिया, उसका प्रोजेनी अच्छा हो गया. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ less accuracy in case of pedigree selection. Now, inability to discriminate among the offsprings of same ancestor. अगर मान लीजिए सेम, हम लोगों को वी माइट ऑल्सो हैव टू सिलेक्ट बिटवीन, अगर सेम सायर डैम के भी मान लीजिए देयर आर टोटल ऑफ 10 प्रोजेनी, अगर लिटर बियरिंग एनिमल है तो सेम सायर एंड डैम के पिग में कितने ही हो गए, और हमको उनमें से सिर्फ कुछ को सिलेक्ट करना है, तो पेडिग्री के बेसिस पे कैसे कंपेयर करेंगे, सायर डैम तो सबका एक ही है, तो सब तो एक ही वैल्यू देगा. All will be equally good, but it is not so in actual. Individual will differ. Am I clear to all of you what I mean? Now, selection based on performance of collateral relatives. कोलैटरल रिलेटिव्स और डायरेक्ट रिलेटिव्स जो होते हैं वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटिव्स के टर्म होते हैं. डायरेक्ट रिलेटिव मतलब जिनका ब्लड से रिलेशन है, दैट इज जीन डोनर रेसिपिएंट बेसिस आर कॉल्ड डायरेक्ट रिलेटिव. एग्जांपल पेरेंट एंड डॉटर, पेरेंट एंड सन, ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड डॉटर, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेटिव्स व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑन जीन डोनर रेसिपिएंट बेसिस. लेकिन रिलेटिव्स व्हिच आर नाइदर डायरेक्ट नॉर डायरेक्ट एंसेस्टर और डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड एज कोलैटरल रिलेटिव्स. Example, cousins, aunt, uncle and nephew. It can be a basis of selection as collateral relative shares a proportion of gene with an individual. बहुत नहीं शेयर करेगा, लेकिन ये जो 7/8 की हम लोगों ने बात की है वो तो हमारे पास है फ्रॉम द कोलैटरल रिलेटिव्स में से, जिसमें कोलैटरल रिलेटिव भी आते हैं. Obviously, the percentage of the gene contributed by collateral relative is very less as compared to the direct relative, but it does occur. So it can be a basis of selection as collateral relatives share a certain proportion of gene with the individual, so can assist about the breeding value. But the information from only close collateral relative are helpful because, as I said to you all, more will be the distance of that collateral relative, less will be the contribution out of this less 7.8. तो जितना और कोलैटरल रिलेटिव में जितना डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा और कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ टोटल कम होगा. ऐसे ही डायरेक्ट से कोलैटरल का कम है, डायरेक्ट 1/8, कोलैटरल 7/8. अगर मान लीजिए और ऊपर जाते हैं ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट, तो उसी तरह से 1/2 टू द पावर 4 हो जाएगा. तो 1/2 टू द पावर 4 उस जनरेशन तक क्या होगा, अगर हमारे पास डेटा है तो 1/2 टू द पावर 4 जो है वो डायरेक्ट से मिलेगा, बाकी जो है कोलैटरल से मिलेगा. नाउ फैमिली सिलेक्शन, इट रेफर्स टू कोलैटरल रिलेटिव सिलेक्शन में हमने देखा डायरेक्ट और ये कोलैटरल रिलेटिव सिलेक्शन. नेक्स्ट इज फैमिली सिलेक्शन. फैमिली सिलेक्शन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इसमें अलग हो जाएगा अभी जब हम लोग बिटवीन फैमिली सिलेक्शन पढ़ेंगे. तो it is also a basis of selection. It refers to a group of individual having common genetic relationship by virtue of having one or both parents common. मतलब what refers, family refers, the term family refers to a group of individuals having common genetic relationship by virtue of having one or both parents common. Example, full sib or half sib family. Members of a family carry a certain fraction of common gene called as coefficient of genetic relationship or relationship coefficient. This will be the next chapter you all will be taught. कितना common gene एक परिवार का हर सदस्य कैरी करता है, it is called as relationship coefficient. मतलब how much are they common to each other as far as genetic constitution is concerned, it is called as coefficient of genetic relationship. Family can further be divided into two types, full sib family with both the parent common and half sib family with one parent common. मतलब human being में एक परिवार जहां पे कि there is a parent with mother and father and 4 children or 5 children या 2 children या 3 children, they constitute a full sib family. Am I clear to all of you?
Yes, sir. Okay. As far as pigs or sire pigs are concerned, suppose we are talking about all the progeny in the farm having common sire. So we are talking about half sip family, or having common dam. We are talking about half sip family. Selection of a family on the basis of its average performance is called as family selection. मतलब जब हम family के average performance को देख करके select करते हैं तो इसको हम लोग family selection बोलते हैं. And it is a further of two types. Between family selection and within family selection. If this is between family selection, फर्स्ट टाइप इज बिटवीन फैमिली सिलेक्शन. इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक इंडिविजुअल को ना सिलेक्ट करके, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बाकी मेथड ऑफ सिलेक्शन से जो मैं बात कर रही थी. तो फैमिली सिलेक्शन नहीं, उसका एक पार्ट बिटवीन फैमिली सिलेक्शन डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर मेथड ऑफ सिलेक्शन, दैट इन दिस केस इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग एन इंडिविजुअल वी सिलेक्ट द फैमिली ऑन एंड होल. फैमिली का जो अलग अलग मीन होता है हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं ऑन एंड होल, एंड आउट ऑफ इट फैमिली आर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज परफॉर्मेंस. जिस फैमिली का मीन जो होगा, एवरेज परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होगा, हम लोग उसको, एक मिनट रुकिए, तो हमारे पास, मेरे पास इसका होगा डेटा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एक मिनट, स्टॉप प्रेजेंटिंग. I am having the data sheet of it which I want to show to you all. Say suppose, yes, this is open file. So I don't know if I'll be able to screen share. थोड़ा सा उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर करते हैं. कहाँ चला गया स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन? मैं आउट हो गई थी क्या? दो ज्वाइन कर लिया. Am I in the meeting right now? Okay, I understood what happened. Present now. A window. कहाँ पे था हमारा जो हमको पीडीएफ दिखाना था? Adobe. This Adobe Vision, is it visible to you all? Adobe Reader page? पेज आप लोगों को विजिबल नहीं है क्या? विजिबल, अभी कोई भी स्क्रीन विजिबल नहीं है. ओके वेट, सा देखिएगा कैसे. अच्छा समझ गई क्या हो रहा है. कैंसल योर एंटायर स्क्रीन शेयर. presenting your screen now. अब एडोब विजिबल है आप लोगों को? Okay, so as you all can see, I'm talking about the accuracy of selection over here. And then इसमें जब हम लोग accuracy of selection देखे थे, यही उस समय हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि based on this table, heritability for heritability, मान लीजिए for heritability 0.1, different values of heritability. For heritability 1 means maximum, 0.1 माने कम, minimum तक, lowest में. तो out of 0.1 and 1, different values of heritability, all the different type of selection, individual versus pedigree selection is being shown for the accuracy. Now, as far as accuracy is concerned, as you all can see, you see, individual selection heritability is, accuracy is 1. 1 मतलब small h है.
स्मॉल एच का वैल्यू, हेरिटेबिलिटी 1h² है तो एच भी तो 1 हो गया. इट मींस हेरिटेबिलिटी इज h, मतलब एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सिलेक्शन इज h. यहाँ पे h² 1 है तो h भी 1 हो गया, इसीलिए इंडिविजुअल सिलेक्शन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन बेस्ड ऑन वन पेरेंट, and you can also see in this individual selection, it is an important table कि as the heritability increases from 0.1 to 1, so does the accuracy of selection 0.32 से लेकर के 1 बढ़ता जाएगा. So for lowly heritable trait, accuracy of selection is just 0.32, and for highly heritable trait it is 1. So we do not recommend individual selection for lowly heritable trait, preferably less than. अगर heritability 0.5 से कम है तो हम लोग इन चारों वैल्यू के लिए इंडिविजुअल सिलेक्शन रेकमेंड नहीं करेंगे. इंडिविजुअल सिलेक्शन जो है ये पहला कॉलम है, इंडिविजुअल सिलेक्शन. नाउ सिमिलरली फॉर पेडिग्री सिलेक्शन, ये जो बाकी सारे हैं वो पेडिग्री सिलेक्शन के लिए दिए हुए हैं. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पेरेंट पेडिग्री सिलेक्शन, दैट इज 0.5h. यू नो 0.5h होता है पेडिग्री सिलेक्शन में, वन पेरेंट के बेसिस पे जब सिलेक्शन करते हैं तो एक्यूरेसी. So as the value of h increases from 0.16 to 0.50, it does increase, accuracy does increase in this case also, but it will never be equal to 1. None of the selection method, pedigree method, will it be equal to 1. So we say that individual selection is more accurate than pedigree selection. ये चारों कॉलम pedigree के हैं. But then the effect in case of pedigree selection, as you can see, is comparatively less. पहले वाले से लास्ट वैल्यू तक जैसे 0.1 से 1 इंक्रीज होता है, दिस इफेक्ट इज कंपैरेटिवली लेस एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सिलेक्शन. सो इन केस ऑफ लोली हेरिटेबल ट्रेट वी कैन गो फॉर पेडिग्री सिलेक्शन एंड नॉट द इंडिविजुअल सिलेक्शन. फर्स्ट कि जब एक्यूरेसी ही के चलते इंडिविजुअल ले रहे हैं, जब एक्यूरेसी नहीं है तो हम लोग इंडिविजुअल क्यों लेके जनरेशन इंटरवल या टाइम वेस्ट करें, ये लॉजिक है. नाउ अब कमिंग टू बोथ पेरेंट, जब हम लोगों ने पेडिग्री सिलेक्शन ही लिया, बट व्हेन वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ बोथ द पेरेंट, एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन फॉर्मूला इज 0.7h and obviously the maximum is 0.70. when we are taking the record of parent plus both the parent plus 4 grandparents, पेरेंट के जनरेशन में 2 हमारे पास होगा, ग्रैंड पेरेंट के जनरेशन में 4 होंगे, 1 पैटर्नल 1 मैटर्नल. तो अगर इतने का डेटा हम लेते हैं तब मैक्सिमम एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन, हेरिटेबिलिटी, मैक्सिमम एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन कब होगा, हेरिटेबिलिटी 1 से ज्यादा तो हेरिटेबिलिटी नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में होता है. सो दिस इज द मैक्सिमम एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन ऑब्टेन्ड विथ 2 पेरेंट एंड 4 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट. सिमिलरली मैक्सिमम एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन ऑब्टेन्ड विथ कंप्लीट पेरेंट, जब हमारे पास 2 पेरेंट, 4 ग्रैंड पेरेंट और 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है तो 0.70 है. उससे ऊपर का पेडिग्री वी डू नॉट रिलाई बिकॉज द जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडिविजुअल डिक्रीजेस, so the selection will be inaccurate. So this table shows to you all many things, like we should not go for individual selection less than when heritability, ये heritability का column है, when heritability is less than 0.5 पहला. Accuracy of selection is maximum in case of individual selection. दूसरा 1 which is never obtained in any of the pedigree selection. तीसरा in case of individual selection, as you can see, as the value of h square increases from 0.1 to 1, so does the accuracy. चौथा individual after taking pedigree selection can either be of 4 types. या तो पूरा सिर्फ एक पेरेंट के डेटा पे पेडिग्री सिलेक्शन कर रहे हैं, जो आउट ऑफ ऑल द 4 टाइप ऑफ पेडिग्री सिलेक्शंस का सबसे कम एक्यूरेट है. क्यों, एक पेरेंट, एक फादर या एक मदर के बेसिस पे प्रोजेनी को सिलेक्ट करेंगे, वो तो सबसे कम एक्यूरेट होगा ही ना, 0.50. एंड द अदर्स मोस्ट एक्यूरेट आर, या तो दोनों पेरेंट को ले लीजिए 0.70. अगर पेरेंटल जनरेशन का डेटा नहीं है तो दोनों पेरेंट के साथ आप 4 ग्रैंड पेरेंट भी ले सकते हैं, एंड 2 पेरेंट प्लस 4 ग्रैंड पेरेंट प्लस 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट कैन ऑल्सो बी टेकन. The maximum accuracy of selection obtained with pedigree selection in any case is 0.70. So we say that individual selection is more accurate than pedigree selection. ये जो second table जो हम लोग देख रहे हैं, accuracy of selection based on the performance of parent and grandparent and the relative weightage given to the parent versus grandparent. जब एक पेरेंट है 0.5, जब 1 ग्रैंड पेरेंट है 0.25, जब पेरेंट टू ग्रैंड पेरेंट है, यू कैन सी हाउ विथ हेरिटेबिलिटी इट इज इंक्रीजिंग. बट ये सेकंड टेबल इज नॉट फॉर नीड टू यू ऑल, ज्यादा हाई फाई चीजें, पहला में बेसिक फंडा क्लियर हो गया है. नाउ द नेक्स्ट इज विद बिटवीन फैमिली सिलेक्शन, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं. क्या किया गया, मान लीजिए मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, पहले फैमिली में टोटल 12 जन है, 12 जन का मान लीजिए हमने सारे 12 क्या किया है,
डेयरी कैटल का हमने मिल्क प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया, उसका एवरेज निकाल लिया, वो हमारा हो गया फर्स्ट फैमिली का एवरेज। दूसरे फैमिली में हमारे पास मान लीजिए वी हैव 10 एनिमल्स इन लैक्टेटिंग, तो हमने उसका एवरेज निकाल लिया, वो हमारा हो गया F2 एवरेज, F2 बार। तीसरी फैमिली में हमारा हो गया F3 बार, इट इज हैविंग सपोज 15 एनिमल्स इन लैक्टेशन, and so on for the five families. We calculate the mean lactation yield of the family 1, mean lactation yield of family 2, मतलब टोटल लैक्टेशन yield जितना आया उतना बटा 12 है तो 12 से डिवाइड, टोटल लैक्टेशन yield जितना है उतना बटा 10 है तो 10 से डिवाइड, टोटल लैक्टेशन yield जितना उससे 15 से डिवाइड, एंड सो ऑन। सो हमने पांचों फैमिली का हमने एवरेज लैक्टेशन yield निकाला। हमने जब पांचों फैमिली का एवरेज लैक्टेशन yield निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, जो बेस्ट फैमिली है उसको हमको सिलेक्ट करना है, 1 या 2 या जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। सपोज हमने 1 फैमिली को सिलेक्ट किया। नाउ व्हाट वी डू, वी टेक मैक्सिमम एनिमल आउट ऑफ द फर्स्ट फैमिली फॉर ब्रीडिंग। सपोज हम लोगों को ज्यादा एनिमल चाहिए ब्रीडिंग के लिए, तो 2 बेस्ट फैमिली को हमने, सपोज फर्स्ट और थर्ड जो है बेस्ट फैमिली, उसका एवरेज बेस्ट आया है, मैक्सिमम आया है, वी सिलेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड, और उससे हम लोग लैक्टेशन के लिए एनिमल को यूज करते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैमिली सिलेक्शन, बिटवीन फैमिली सिलेक्शन। Now, is it clear to all of you up till here? All of you between family selection clear है? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। हाँ, नहीं समझ आया, ठीक है। Family 1 has suppose 10 members. In lactation with total yield equal to 12,000 लीटर्स। तो एवरेज क्या होगा बताइए? Similarly, family 2 has 15 members with average lactation yield of 1350 हमने डिवाइड करके डायरेक्ट निकाल दिया 1350 लीटर्स। फैमिली 3 लीटर्स, फैमिली 4 1150 लीटर्स, फैमिली 5 1200 liters. Now rank them. Now if you rank them, what will be the ranking? Family 2 followed by 1 and 5 followed by 4 followed by 3. If I have to select just one family for breeding, हम लोगों को एनिमल्स की उतनी ही रिक्वायरमेंट है जैसे 10 की है, हम लोग क्या करेंगे, फैमिली 2 को सिलेक्ट करेंगे। If I have to select more animals for breeding, हम फैमिली 2, 1 और 5 दो तीनों ले लेंगे, बाकी को कल कर देंगे। तो जितने एनिमल फैमिली 1, 5 और 2 में फॉल करेंगे ब्रीडिंग में, we will take them for breeding and we will cull the rest 4 and 3. If suppose I have to take just 10 animals for breeding, I will take family 2 and cull the rest 1, 5, 4, 3. Am I clear to all of you? Yes, sir. This is the concept of between family selection.
Now, but if we go for within family selection, the concept is a bit different. In that case, what we select, proportion, same proportion of individual is selected from each family. Say for example, suppose there are, you see, all of you please look here. Suppose we have to select, within family selection has to be done. 4 families are there and I have to select 8 animals total. So it means what I do, I select 2 from each family. 2 best from first, 2 best from second, 2 best from 3, 2 best from 4 and 2 best from 5. Suppose I have to select just 5 animals. I select 1 best animal with maximum average from 1 best animal with maximum average from 2, 1 best animal from maximum average 3 and 1 best animal from maximum average 4 and 5. जो एक जिसका कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ लैक्टेशन लीड 5 एनिमल लेना है तो हर एक से एक एक ले लिए. फैमिली साइज किसका कितना है, परफॉर्मेंस किसका कितना है वो ना देख करके हम लोगों ने क्या किया, जो हर फैमिली से जो बेस्ट है उसको उठा लिया, चाहे 2 चाहे एक चाहे 3 जितनी रिक्वायरमेंट हुई उस हिसाब से. Now, you see, this is called as within family selection. Am I clear to all of you? Yes, ma'am. Now, the difference between the within family selection and between family selection. Between family selection, families are selected, not the individual. So as you can see, in case of between family selection, families are ranked on the basis of their average performance and the best are retained for producing the next generation. Families are selected not on the base on, and not the individual. This is for individual family selection, while in within family selection, same proportion of individuals from each family are selected and they are used as parent in next generation. It is good for early growth and survival trait and feed efficiency recording, and in this case individuals are selected for each from each family and not the family. So these two, within family selection and between family selection, are actually the subtypes of family selection. Am I clear to all of you? Next method is, okay, next method is SIB selection. SIB selection matlab simply when we select the animals on the basis of their half SIB or full SIB, half brothers sisters or full brothers sisters. Half matlab when one parent is common, full matlab when both the parent are common. So it means that when sire is common, मतलब मान लीजिए से सपोज इन नॉर्मल टर्म बस समझाने के लिए बता रहे हैं, जो मान लीजिए इफ सपोज वी से कि in normal families the 2 children are full sibs of each other, माने full because they have both the parent common. But if suppose से सपोज ऐसा होता है कि किसी आदमी की 2 शादियां होती हैं and he has 2 wives. तो जो पहले वाइफ से जो उसको अगर कोई चाइल्ड होता है और दूसरे वाइफ से जो उसको चाइल्ड होता है, वो चाइल्ड एक दूसरे के क्या होंगे, हाफ सिब्स होंगे, हाफ ब्रदर सिस्टर्स होंगे. So this is the difference between half sib and full sib. Coming back to this was needed to have the proper concept of half and full sib. So I gave you all this example. But moving back to the livestock, which is our topic is entirely different. Coming to the livestock, sib selection. When we select the animal on the basis of average performance of its sib, full sib या half sib, it is referred to as sib selection. It means not selecting the animal on its own basis, but selecting on the basis of their full sib या half sib. It is similar to family selection, but the unit of selection is individual and not family. Individual under selection does not contribute to the family average. It is good for sex limited trait and slaughtered traits, all or none traits. Accuracy of sib selection is equal to R into H under root N 1 plus N minus 1 H, where N minus 1, where R is the relationship of individual with its sibs. आप लोगों का क्लास भी है ना 2 बजे से?
ठीक है, बस ये सिर्फ सिलेक्शन बता के छोड़ दे रहे हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि जिसमें इंडिविजुअल सिलेक्शन काम नहीं करेगा उसमें बाकी सब सिलेक्शन। तो अगर एक हिंट दे दे रहे हैं, सपोज यू गेट अ क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फैमिली सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, प्रोजेनी सिलेक्शन। दो तीन चीजें तो नॉर्मल है, जो कि इंडिविजुअल में डिसएडवांटेज है वो इस सब में एडवांटेज होगा। जनरेशन इंटरवल स्मॉलर, गुड फॉर लेट एक्सप्रेस ट्रेड, गुड फॉर कार्कस ट्रेड, गुड फॉर सेक्स लिमिटेड ट्रेड, गुड फॉर वही स्लॉटर ट्रेड माने कार्कस ट्रेड। तो ये सब चीजें जो आप लोगों को उसमें डीमेरिट में मिलेगी वो आप लोगों को इसमें मेरिट में मिल जाएगी। तो कॉमन आंसर्स यू ऑल कैन हैव इफ यू गेट सिमिलर क्वेश्चंस, यू कैन टेक इट एज अ हिंट कि आप लोग उसमें वो लिख सकते हैं। इंडिविजुअल सिलेक्शन का मेरिट में हाईएस्ट एक्यूरेसी हो गया, ये सबसे बड़ा इंडिविजुअल सिलेक्शन का मेरिट है। बाकी जितना उसका डीमेरिट है सारा सब बाकी मेथड का मेरिट में आ जाएगा। Accuracy of selection is given by RH, where R is the degree of relationship of individual with its SIBs, मतलब relationship coefficient. और this R is equal to 0.5 for full SIB and 0.25 for half SIB. Misprint है ये, 0.25 for half SIB. T is equal to RH square and has a value of 0.5 H square for full SIB and 0.25 H square for half SIB. ये बस बताने के लिए हाँ बेटा, टी नहीं है क्या? वेरी गुड, ठीक है। But this formula will not come for, I don't think generally they will be giving to you all at this level in examinations, but just wanted to give this formula for common knowledge. Now from next class, we will be talking about the progeny selection in next class. If Dr. Rebecca takes the class tomorrow from 9, I will take the class from 2 p.m. Okay, 9 a.m. वाला लेंगे तो हम 2 p.m. वाला लेंगे, ठीक है children? Okay, so how many students are there? I just don't want to delay. चाह रहे हैं कि सबसे पहले स्लाइड शेयर कहाँ गया, इसको पहले ऑफ